السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق الله العلي العظيم۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہمارا رمضان اسپیشل خلاصہ قرآن کے عنوان سے 2026 عیسوی 1447 ہجری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج کا ہمارا 56 پوڈ کاسٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے اور ہم عشر رحمت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس عشرے کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ مفتی صاحب الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، روزانہ سوا پارہ سنا کر آ رہے ہیں اور میں سوا پارہ سن کر آ رہا ہوں، اور ہم سوا پارے کا خلاصہ قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ، سورہ بقرہ کا خلاصہ، سورہ آل عمران کا خلاصہ، انشاءاللہ آج فورتھ تراوی جو سورہ نساء کا خلاصہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور میں کل جو گفتگو ہوئی ہے، مختلف ٹاپکس پر مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے۔ الحمدللہ یہ نئی جنریشن کو قرآن سے قریب کرنا ہے، اور قرآن جو پیغام الہی ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بے شمار رحمتیں برکتیں ہیں۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرماتا ہے، اور اس کی تلاوت ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں قرآن کا تعلق ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات میں قرآن کو نازل کیا ہے اللہ نے۔ بہرکیف پچھلی گفتگو میں مفتی صاحب نے بے شمار ٹاپکس پر گفتگو کی ہے، اور جیسا کہ دعا کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ یقین ہے، دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب اور برگزیدہ جو بندے ہیں، ولی ہے، نبی، رسول، یہ مجبور نہیں ہے، یہ صاحب مختار ہے، صاحب اختیار ہے۔ مجبور غیروں کا ٹاپک ہے، ہم اختیار مانتے ہیں، کیونکہ آپ کو ریئل قرآن پیش کیا جا رہا ہے، آیت پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک کے آپ کو جو اہل سنت کا جو بیس ہے قرآن ہے، الحمدللہ اگر آپ کو اس کے اندر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے یا کچھ شک ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھیں، اس مفتی صاحب اس کا جواب اس کے اندر دیکھیں ہماری گفتگو میں ہم جو دلائل دے رہے ہیں، بے شک دوسری کلپ سے جو متاثر ہوئے اسی کو ختم کرنا ہے۔ بے شک دوسری کلپ سے آپ متاثر جو ہوئے ہیں، ہم دلائل دے کر اسی کو ختم کرنا ہے، کنفیوز نہ ہو۔ پھر بھی ہماری گفتگو میں اگر کوئی شک و شبہات ہیں تو آپ کمنٹس میں سوال کرتے ہیں۔ آئیے
हम वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं और उसका खुलासा सुनते हैं, और इस किताब से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। अगर आप इस किताब से मोहब्बत करेंगे, ये किताब आपको अल्लाह का कुर्ब अता करेगी और नबी की पहचान, नबी की मारिफत अता करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सुनिए मुफ्ती साहब से आज सूरह निसा का खुलासा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये है आज की तरावी का आगाज़, चौथी तरावी जो हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा करे कबूल हो जाए। सूरह निसा ये मदनिया है और इसमें 176 70 पे 6 आयतें हैं और इसमें 20 रुकू हैं। आप सोचें, एक एक का सवाब जब 70 मिलेगा तो कितनी आयतें? 176। बाप रे बाप, मतलब वाकई क्वांटिटी भी क्वालिटी बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सूरह निसा, इसमें एक नुक्ता ये दूंगा खुलासे कुरान के नाम से कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में, निसा माने होता है औरत, औरतें प्लूरल है। इम्राअतुन एक औरत को कहते हैं और उसकी जमा बगैर लफ्ज़ ही निसा और निस्वतुन दोनों है। निसा और निस्वतुन दोनों है, वो प्लूरल का माने में यानी जमा। सूरतुर रिजाल नहीं है कहीं। ये खूबसूरती देखिए, सूरतुर रिजाल नहीं, यानी मर्दों की सूरत। रिजाल के नाम पर कोई सूरत नहीं है, निसा के नाम पर सूरत है। इससे औरतों की खुसूसियत मिलती है। मैं अपनी माँ और बहनों और बेटियों को खास तौर से, जो कुरान से दूर हैं, उससे और जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कंफ्यूज होती है ना कि हमें इस्लाम ने क्या दिया है, तो तुम्हें इस्लाम ने क्या दिया है? तुम तो इस्लाम के अंदर हो। तुम्हें वो इज्जत मिली है कि अगर तुम्हारे नाम को भी कोई छूना चाहे तो बावजूद छुए। सोचो, अगर तुम औरत की कैटेगरी में हो तो सोचें, अल्लाह पाक सूरह निसा पढ़ने वालों के लिए बगैर वजू के नहीं छू सकते। नहीं तो सूरतुर रिजाल नहीं है कुरान में, सूरतुल निसा। ये है स्ट्रांगनेस औरतों का। औरतें, बच्चियां कॉलेज स्कूल के मॉडर्न एजुकेशन की वजह से दूर हैं। मैं उन पढ़ने वाली बच्चों, इसीलिए एक जुमला कहता हूं, कल की बेटियां, कल की माएँ जाहिल थी लेकिन बाअदब थी। आज की बच्चे और बच्चियां पढ़ी लिखी हैं लेकिन बेअदब हैं। कल की जो औरतें थी बाअदब थी, अकीदा ठोस था, मुतसल्लिब थी अपने बुजुर्गों के हवाले से। आज जरा सी बाप माँ बेटियों को डांट देते हैं तो जवाब दे देती हैं बच्चियां। तो जो तालीम तुम्हें बेअदब बनाए उसे दुनिया की तालीम कहते हैं, और जो तालीम तुम्हें बाअदब बनाए उसे दीन की तालीम कहते हैं। ये है। और सोचो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे को अल्लाह पाक ने एक सूरत का नाम दे दिया है, सूरतुन निसा। सूरतुल रिजाल पूरे कुरान में नहीं है। नबियों के नाम पे सूरह है, रिजाल के नाम पर सूरह नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये औरतों की इज्जत का, औरतों के सम्मान का, और औरतों को जो अल्लाह ने इज्जत दी है। मखलूक की इज्जत लिमिटेड होती, खालिक की इज्जत अनलिमिटेड होती, क्योंकि खालिक खुद अनलिमिटेड है तो उसकी अता भी अनलिमिटेड। अब क्वांटिटी का तसव्वुर ही मत रखो कि क्या दिया है, ये पूछो कि क्या क्या दिया है। समझ रहे हैं ना? और एक जुमले में कहूं, क्या क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। अब तो कुरान में रख दिया तुमको अल्लाह पाक ने। सोचे, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें सूरतुन निसा के कुतुफैल में निसाए उम्मत की हिफाजत फरमाए और सैयदे निसाए अहलिल जन्नह का सदका नसीब फरमाए।
दिन भी हमारा वो तारीख के एतबार से हम हर रोज मानते हैं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम हर रोज मानते हैं। 5 वक्त की नमाज में तो कंपलसरी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तारीख के मोहताज नहीं, तारीख उनकी मोहताज है। इस पर हमने जो सीरीज दिए हैं वो देख लें जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नुक्ता देख लिया आपने, औरतों का सम्मान। कुल कितनी आयतें बताए मैंने? 76। हाँ 76। अब इसके आगाज ही देखिए आप, ये निकाह में पढ़ी जाने वाली आयत है, निकाह के खुतबा में पढ़ी जाने वाली आयत है, पहली आयत है। अब यहां पर जरा गौर कीजिए और थोड़ा सी माशरती सतह पर इस्लाह कीजिए आप कि वो खुशी का मौका है कि नहीं। शादी का माना, ये पर्शियन वर्ड है, वो शादी किसको कहते हैं? खुशी को। शादी माने खुशी। शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो, तो शादी बमाना खुशी, शादी खाना आबादी, ये खुशी। अब बताइए, अगर आप नौशा के कान में ये बोले जा करके कि अल्लाह से डर, तो नौशा क्या कहेगा आपको? अरे यार, खुशी के मौके से भी क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन हकीकत ये है कि आपने सही कहा है। क्या कहा आपने? सही कहा। क्यों? अब आप देखिए क्या फरमा रहा, ए लोगो अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। खुतबे में पढ़ी जाने वाली आयत है ये, इत्तकुल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि खुशी के मौके पे खालिक को भूल जाओ, क्योंकि देने वाला जो है खुशी वो खालिक ही है। तो अगर मुअती को भूल जाओगे तो अता खत्म हो जाएगी। अता करने वाले को नहीं भूलना। ये दिन जो है सईद तुम्हें इसीलिए मिला है कि देने वाला कौन है? खुदा है। तो ये लोगों, भूलना नहीं, अपने उस रब को याद रखना और उसको हर हाल में इबादत उसकी करना। तो इस मौके से अल्लाह पाक जो नुक्ता देना चाह रहा है वो यही है कि ए नौशा, कहीं ऐसा ना हो कि इतने खुशियां और इंजॉयमेंट की दुनिया में चले जाओ तो मुझे भूल जाओ। क्योंकि अगर मैं एक सेकंड के लिए तवज्जो हटा दिया तो तुम्हारी अताओं का सिलसिला मुनक़ता। इसलिए अता करने वाले को ना भूलना, ये नुक्ता दिया है। तो शादी में शरीक होने वाले, शादी करने वाले, शादी करने वाली, हर एक पर लाजिम है कि उस दिन खास तौर से अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के जो फराइज और वाजिबात हैं वो इसलिए मतलब न तर्क करें कि ब्यूटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें पैदा किया। मुसव्विर हकीकी वही है, कल पढ़े ना आप, तुम्हारी सूरत वही बनाने वाला है। अगर वो चाह ले तो तुम्हें हुस्न का खूबसूरत औरत को मलका बना दे और मर्द को मालिक बना दे, और अगर चाह ले तो कितना भी तुम ज़ेबतन मतलब हो जाओ लिबास में या ब्यूटिशन में, जरा पानी लग जाए या भूल चूक हो जाए, खराब हो सकता है। लिहाजा अपने रब को न भूलना। एक नुक्ता आयत नंबर 1 में एक नुक्ता दिया, और उसी आयत नंबर 1 में सबसे अहम बात देखिएगा, इसको आप भी हाईलाइट करें। शादी में नए रिश्ते जुड़ते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं। अल्लाह पाक ने एक लफ्ज वल अरहाम यहां पर फरमाया। अरहाम बोलते हैं खास रिश्तेदारों को, जो पहले से रिश्ते, रहम वाला रिश्ता, समझ रहे हैं? हाँ, रहम वाला रिश्ता, आप समझिए, ये जुमला बहुत अच्छा है। खूनी रिश्ता तो कौन भी आजकल बना ले रहे हैं, रहम वाला रिश्ता यहां पर बताना चाह रहा है अल्लाह ताला। ओह क्या बात है यार, देखिए कि नए रिश्ते की वजह से पुराने रिश्ते को मत भूलना, मां को मत भूल जाना, बाप को मत भूल जाना, भाई बहन को मत भूल जाना, बीवी की वजह से मां को मत ठुकरा देना, ओल्ड एज होम में मत भेजना। ये इशारा कर रहा वल अरहाम। आया समझ में? ये है खुलासा कुरान का खूबसूरत कॉन्सेप्ट। क्या कहना चाह रहा अल्लाह ताला? ए नया रिश्ता बनाने वालों, कभी भी नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, और जो जुड़े हुए रिश्ते हैं नेचुरली, जैसे माँ बाप भाई बहन, ये वो रिश्ते हैं जो खत्म होने वाले नहीं है, जुड़े नहीं है, ये पैदा हुए हैं, ये नेचुरली है ये। लिहाजा नए रिश्ते की वजह से पुराने रिश्ते को फरामोश नहीं करना। तो आयत नंबर 1 में सूरह निसा के खुलासा में ये 2 तसव्वुर आपको हमको मिला। आयत नंबर 3 में
ये आज कर के ओरिएंटलिस्ट को, मुस्तशरिकीन को और मॉडर्न साइंसदानों को और एंकरों को और यहूदी फिक्र रखने वाले लेटेस्ट मौलवियों को भी और कुरान से दूर और कुरान का गलत एक्सप्लेनेशन करने वालों को सबको मैं एक दावत दे रहा हूं कि आज कहा जाता है कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी। सबसे पहले तो उसी में देखिएगा, उसी में इजाजत है, निकाह की इजाजत दी है। औलाद पैदा होने को दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बच्चे पैदा करने का ये हुक्म नहीं दिया इस्लाम ने। फनकिहू, निकाह करो, और निकाह जिना के मुकाबले में बोला जाता है। निकाह का अपोजिट कौन है? जिना। अब एक हदीस से इसको समझिए कि मैं अपने आबा व अजदाद के जरिए जो मुंतकिल हुआ हूं, निकाह के जरिए मुंतकिल हुआ हूं, जिना के जरिए नहीं। सारी सुल्ब से सुल्ब जितने भी हैं ना, सब निकाह से, यानी कोई गलत रिश्ते की बुनियाद पर वजूद में हमारी असल नहीं है, नस्ल नहीं। वाह वाह वाह। तो निकाह किसके मुकाबले में बोला जाता? जिना उसकी जिद है। मतलब फन के हु, निकाह करो। निकाह करो का मतलब ये हुआ जिना ना करना, बस इतना बताना मकसूद है। एक पहली बात। उसके बाद फिर यह है कि 2-2, 3-3, 4-4। तो ये 2-2, 3-3, 4-4 को लेकर के उठाए तो उसका जवाब पहले ही लफ्ज में है कि वहां निकाह है, जो निकाह पवित्रता का दर्श देता है। क्योंकि जिना में ये पहलू हो सकता है कि आप इंजॉयमेंट के लिए करते हो माद, और यही है, हो सकता नहीं, यही है, महज नफ्स की ख्वाहिश है, उसमें नफ्स की तस्कीन और तकमील है। लेकिन निकाह में बीवी को देखना इबादत है, बीवी को मुंह में लुकमा देना इबादत है, जो मनकूहा है उससे रिलेशन जो है इबादत है। बरखिलाफ देखना इबादत, मुंह में लुकमा डालना इबादत है। क्या बात है। सीने से लगाना इबादत है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये जवाब। दूसरा कि यहां पर आप देखें कि ये जो 2-2, 3-3, 4-4 शादी का जो पस मंजर है, ये ऑर्डर का सेंटेंस नहीं है, ऑर्डर का सेंटेंस नहीं है, बल्कि यहां पर वइन खिफ्तुम, ये यतीमों के हवाले से है कि अगर यतीम लड़कियों में तुम अदलो इंसाफ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वो एक पस मंजर खास था कि लड़कियों को अपने घरों में रख लेते थे, शादी नहीं कराना, उनकी जायदाद वगैरह हड़प लेना, ये मंजर है। तो वो इसलिए रखते थे। फरमाया कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो तो 4 तक हद है निकाह के साथ, ऐसे ही नहीं रख सकते। 4 तक हद है निकाह के साथ, जुल्म के एतबार से न रखना। होता था अरब में ये कि या तो लंगड़े लुल्ले से यतीम लोगों को परवरिश में ले लेते थे और जायदाद उनके नाम बहुत होता था, समझ रहे, तो अपनी परवरिश में ले लेते थे। तो ले लेने के बाद अगर शादी कराने का की उम्र भी हो जाए ना, तो लंगड़े लुल्ले उल्टे पुल्टे से करा देते थे, बस ताकि ये मर जाए या कुछ हो जाए तो हम इनकी जायदाद हड़प लें। तो अल्लाह ने एक कंडीशन दिया, यतीमों के हवाले से तुम जो इंसाफ नहीं कर रहे हो ना, ऑर्डर सुनो, अगर निकाह करना है 2, 3, 4 बस। मगर उसमें भी देखिएगा, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम इनमें अदल ना कर सको, ये बहुत इंसाफ ना कर सको, तो एक ही काफी है। मालूम यह हुआ ताद्दुद इज़्दिवाज में यहां पर हुक्म खुदा बिशर्त है, यानी अदलो इंसाफ के साथ कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। और निकाह सिर्फ नफसानी ख्वाहिश का नाम नहीं है, बल्कि नफसानी ख्वाहिश से बचने का नाम है, यूं कहिए। इसीलिए हदीस पाक में आया है कि जो निकाह करता है उसकी आंख महफूज होती है, शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। हाँ, बहरहाल ये जो 3-4 का हुक्म है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह में नहीं है, बल्कि अदल के बाब में है। हाँ, यहां तक कि अगर एक को भी आप नहीं निभा सकते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि रोजा रखो, मत करना। देखिए, जो इस्लाम एक को भी हुक्म रखने के लिए अदल का तकाजा पेश कर रहा हो, वो यूं ही हुक्म दे देगा कि 4-4 शादी करो।
میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں شادی کرنے میں اگر اولاد کو پیدا کرنا صرف مقصود تھا تو نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو؟ معلوم ہوا اسلام کا جو نظام ہے وہ نیچر کے مطابق ہے، اسلام کا نظام نیچر کے مطابق ہے، ظلم کے خلاف ہے، عدل کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 3 میں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4 میں واہ بڑا اہم مسئلہ، آج تو چونکہ نساء کا مسئلہ ہے تو عورتوں ہی سے ریلیٹڈ ہے، اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی دو۔ اب یہاں پر سمجھیے آیت نمبر کتنی ہے؟ 4۔ اس میں ذرا محسوس کیجئے اس بات کو، کیا کہا؟ خوشی خوشی دو، مطلب مرتے وقت نہیں بولو کہ معاف کرا دو، نہیں، یہ بتائیے کہ اگر 20,000 25,000 1 لاکھ 2 لاکھ بھی رکھے، 60 سال دیا بیوی نے آپ کو، اور 60 سال میں آپ 1 لاکھ روپیہ بھی ان کو نہیں دیے، ہوٹل تو خوب کھلائے۔ یاد رکھیے گا مہر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے، وہ اس کا حق ہے، حق شرعی ہے۔ باقی دیگر چیزوں کے لیے آپ روک سکتے ہیں، یعنی اگر وہ مطالبہ کر دیں مجھے فون دلاؤ تو آپ کہہ سکتے ہو نہیں میرے پاس نہیں ہے، سوری، لیکن مہر کا مطالبہ کرے تو آپ کو کمپلسری دینا ہے، یہ اس کا حق ہے، حق شرعی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نحلتن کا ایک لفظ ہے، نحلتن مانے خوشی خوشی، ایسا نہیں کہ مرتے وقت بولو معاف کر دو معاف کر دو۔ کچھ علاقے میں تو ایسا ہے کہ بل مر گئی ہے نا تو معاف کر دینا، ماں لو، مطلب ہوش و حواس میں آپ ان کو مہر دیں یا معاف بھی کرانا ہو تو ہوش و حواس، اور ہوش و حواس سے مراد چلتے پھرتے کھانے کے حالت میں ہو، ایسا نہیں کہ ویل چیئر پہ ہو، ڈاکٹر نے سب چیز منع کر دیا کھانے کے لیے اور آپ 1 لاکھ روپے لا کے دے دیجئے ان کو، کیا کرے گی وہ؟ اس وقت دو، خوشی خوشی کا لفظ ہے جس وقت وہ اس کو یوز کرنے کی صلاحیت میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو چاہیے کہ مہر جو اس کا حق ہے وہ دے دیں۔ جن لوگوں نے نہیں دیا ہے ان کی بیویاں مر گئی ہے تو وہ وراثت ہے اس کی، جس میں اس کا بھی حق ہوگا، اولاد نہیں ہے تو آدھا حق ہوگا، اولاد ہے تو پھر چوتھائی وغیرہ کا مسئلہ ہے، یعنی وراثت ہے اس کی، ملکیت ہے، اور اولاد اگر نہیں ہے تو پھر اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا اس کی وراثت کو، یعنی وارثین اگر ان کے نہیں ہیں تو اس کی وراثت کو۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ خوشی خوشی مہر ادا کرنا چاہیے، مجبوری معاف نہیں کرانا چاہیے۔ اگر وہ معاف کر دیتی ہے حالت صحت میں، حالت طاقت و توانائی میں، تو الحمدللہ کھاؤ پیو کھا سکتے ہو آپ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یتیموں کے مالوں کو کھانا نہیں چاہیے، یتیموں کے مالوں کو کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کھاتا ہے، آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے یتیم کے مال سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آج کل بھائی لوگ، باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے بہنوں کے سر سے، بھائی لوگ حق نہیں دیتے ہیں تو وہ جہنم کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ بھائی لوگ ذرا احساس کریں۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں پوری وراثت کا مسئلہ ہے، آیت نمبر 11 اور 12 میں پوری وراثت کا مسئلہ ہے۔ مثلا مطلب مرد کو ڈبل ملے گا عورت کے مقابلے میں۔ یہاں پر بھی ایک اشارہ کر دے رہا ہوں کہ یہاں پر بھی دیکھو، ظاہری طور پر دیکھیں تو کہا جائے گا دیکھیے انصاف کا تقاضا نہیں ہے، انصاف کا تقاضا نہیں، اور اسی میں مطلب یہ کہ آپ کے مشہور ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب پھسل چکے ہیں دیت کے مسئلے میں۔ ہاں، وہ تفصیل ہے، میں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو مرد کو عورت کے مطلب مقابلے میں ڈبل دینے کا حکم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی شادی جہاں ہوئی ہے وہاں سے آپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن آپ کی بیوی کو اس کے میکے سے بھی حصہ ملے گا اور آپ کے یہاں بھی حصہ ملے گا، تو ڈبل تو اس کو مل ہی گیا ہے۔ نہیں آئے سمجھ میں آپ؟ ہاں، باپ ماں کے یہاں کی بھی وہ حقدار ہے اور شوہر کی بھی۔ ہاں، تو ہو ہاں، اگر غور کریں، فرض کیجئے کہ ماں باپ کے یہاں ان کو کم ملنے والا ہو اور شوہر ایک دم کروڑ پتی ہو، تو شوہر کو تو بس اپنا ہی
अपने ही बाप माँ से जो मिलना है मिलेगा, ठीक है। और अगर बेटी का बाप माँ करोड़पति हो तो बेटी को जबरदस्त मिलेगा ना। तो इस्लाम में निजाम अदल है, इस्लाम में निजाम अदल है। डबल अगर लड़के को मिला है तो उसको तो ऑटोमेटिक डबल मिला है, वो बाप माँ के यहाँ भी वारिस है और ससुराल में भी वारिस है, मैके में भी वारिस है और ससुराल में भी। हाँ, जैसा कि बीवी के माँ बाप गरीब है और शौहर करोड़पति है तो उसको खाली शौहर से मिलेगा। नहीं, ये सिचुएशन आप बोल रहे हैं, सिचुएशन आप बोल रहे हैं। गरीब मतलब वारिस कह रहा हूं कि वो औलाद होने की हैसियत से माँ बाप की भी वारिस है और बीवी होने की हैसियत से शौहर की भी वारिस है, लेकिन शौहर सिर्फ अपने माँ बाप का वारिस है, वो सास ससुर का वारिस नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो विरासत लेना है ना उनको। हाँ, खैर इसमें पूरा डिटेल है, ठीक है। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। एक बार आयत नंबर 11, 12 उम्मत को कहें कि इसका मुताला कर लें, पूरा डिटेल है कितना कितना किन को मिलेगा, विरासत का मसला। और तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कंडीशंस हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करेंगे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, और जो नहीं करेंगे अल्लाह उन्हें जहन्नम में दाखिल करेगा। मुराद ये है विरासत के मसले में इजी नहीं लेना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से गालिबन रिवायत है कि मतलब ये कि किसी ने कह दिया आपकी मजलिस में कि क़यामत आ गई, तो आपने अपने मतलब जानों पे हाथ मार करके कहा कि क्या विरासत बांटने वाले खत्म हो गए? जरा इस इशारे को समझिए, विरासत बांटने वाले खत्म हो गए। कहना क्या चाह रहे हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि विरासत बांटने का सिलसिला शरई तौर पर कायम रहेगा। अगर विरासत को सही तौर पर नहीं बांटा जाएगा तो समझिए कि कयामत आ जाएगी। तो कयामत की अलामत है ये, वारिसीन को, मुस्तहिकीन को क्या करना, महरूम रखना, ये कयामत की अलामत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला। आयत नंबर 17 में अल्लाह पाक ने बड़ी अहम बात फरमाई है कि जहालत की बुनियाद पर, देखिए जहालत लफ्ज नहीं है कुरान में, है जहालत। हाँ, जीम पर जबर। जहालत की बुनियाद पर अगर किसी से गुनाह सरजद हो जाए और वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। उम्मत मोहम्मदिया पर सबसे बड़ा करम है अल्लाह ताला का कि उसने दरवाजे तौबा बंद नहीं किया, कि बहुत बड़ा एजाज है। पिछली कौमों पर इमीडिएटली अजाब डाल देता था अल्लाह ताला, गलतियां होती थी फौरन अजाब डाल देता था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि इस उम्मत पर अपने महबूब की चाहत की बुनियाद पर यह फैजान है कि गुनाह हो जाए और यू टर्न कर लो तो हम तुम्हारे गुनाह को मेट भी देंगे और मजीद अता करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आयत नंबर 19 में बड़ी खूबसूरत बात है, वो लफ्ज पढ़ रहा हूं मैं, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। क्या बात है, औरत की बात है तो औरत ही की एकदम बात आ रही है हर जगह। देखिए आप आयत नंबर 19 में, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ए शौहरों, बीवियों के साथ, या बल्कि ए मालिकों, औरतों के साथ, कॉमन एकदम, औरतों के साथ भलाई का मामला रखना, औरतों पर जुल्म न करना। यह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। ये कभी देखे आप एंकरों को बोलते हुए? ये तो एतराज करते हैं कि इस्लाम ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। इनकम्प्लीट नॉलेज है कि नहीं उन लोगों का? यही मैं कहता हूं कि स्टडी ऑफ कुरान अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते एक्सप्लेन। यहां देखिए कुरान का जुमला ही पढ़ रहा हूं मैं, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ भलाई से पेश आओ। सोचिए, सबको, यानी अगर बाप माँ है तो बेटियों पर, जितने भी मातहत हैं लड़कियां, मातहत औरतें, निसा है ना भाई, सूरह निसा है, तो निसा के साथ जो है औरतों के मामले में बहुत ही भलाई, सेंसिटिव नहीं, भलाई, पॉजिटिव,
पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा अल्लाह ताला, थ्योरी दे रहा अल्लाह ताला कि तुम्हारी जिंदगी में औरतों की इज्जत हो या ना हो, मेरी निगाह में औरतों की बड़ी इज्जत है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि औरतों के साथ जुल्म न करना। ये ठीक, औरतों के साथ जुल्म न करना। आज तारीख गवाह है, आप देखें कितना जुल्म हो रहा है औरतों पर। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए खास तौर से, और गैर लोग जो इस्लाम को काट छांट कर पेश कर रहे हैं वो ऐसी आयतों को भी निगाह में रखें। बीवियों के साथ बिलखुसूस हुक्म है, अगर बीवी किसी वजह से नापसंद हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत तस्वुर है, अगर किसी वजह से कोई चीज नापसंद नजर आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100% नापसंद हो, कोई अदा तो पसंद होगी ना। तो अगर 99 भी नापसंद हो और जो पसंद हो, तो इस्लाम कह रहा है, अल्लाह कह रहा पसंद को भी कभी कभी बोल दिया करो, क्योंकि दिल उसके पास भी है, दिल उसके पास भी है, इजहार करो। उसको मैं इस तरह से कहता हूं सास को समझाते हुए कि मां, बहू की शिकायत तो कर दिए ना आप, हाँ, आपको चाय नहीं देती, आपको ये नहीं देती, आपको वो नहीं देती, जब से आई है बेटा नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। मुझे एकदम दिल पर हाथ रख के बोलना, कोई अच्छाई नहीं है उसके अंदर, सोच कर बोलना, बोलकर नहीं सोचना। ऐसा क्या कोई अच्छाई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कभी आपने सोचा नहीं, मैं बताता हूं, हालांकि नहीं जानता हूं आपकी बहू को, क्या नमाज नहीं पढ़ती? और नमाज तो पढ़ती, ये अच्छाई है कि नहीं? आपने सिर्फ तौहीन को देखा। अगर आप नमाज पढ़ने को देखें तो नमाज से नबी खुश हो रहे हैं, खुदा खुश हो रहा है, नमाज से नबी की आंखों को ठंडक पहुंच रही है। एक तरफ आप हो, एक तरफ नबी, और बीच में औरत हो। नबी कहे मैं खुश हूं तुमसे, और तुम कहो मैं ना खुश हूं। नबी का बात को हाँ, तो ऐसे समझाएं हमारी सासों को भी, तो इंशाअल्लाह। यानी अगर प्लस यानी क्वांटिटी में अगर गलतियां उनके अंदर हो रही है, तो जो अच्छाइयां हैं वो भी उनको पेश करो, बताओ कि हाँ ये बात जो हमको अच्छी नहीं लगी, बाकी बात तो अच्छी है माशाअल्लाह। तो होता क्या है कि दूसरी सहेलियों के पास भी हमारी जो सासें होती है ना, उसी गलती को पकड़ करके बोलती है, और दूसरों को क्या है, मजा मिलता, घर का निजाम दरहम बरहम। अब वो नमाज में रो रही है, जिसके रोने को रब पसंद कर रहा है, तुम्हें वक्त पर चाय नहीं दिया, कोई गुलाम तो नहीं है ना वो, अरे इंसान है वो, आप प्यार से तो बात करो उनसे, मां बनो ना, बेटी बनकर रहेगी वो। बड़ा खूबसूरत खुलासा निसा का हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अगर ए शौहर हो, कुछ नागवारी हो उनकी तरफ से, तो सुनो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे तुम नापसंद करते हो, लेकिन अल्लाह उसे नापसंदीदगी में खैर कसीर रखता है। जुमले पर गौर करें, आयत नंबर 19 में। उसको दुनियावी तौर पर अगर मिसाल दूं तो सुनिए, एक औरत है जो काली कलौटी है, सूरत की बुनियाद पर शौहर नापसंद करता, लेकिन उसी से औलाद हुई, वक्त का वली पैदा हुआ, हाफिज कुरान पैदा हुआ, आलिम दीन पैदा हुआ। बताओ, एक साइड से तुमने सिर्फ सूरतन उसका फिजिकली तौर पर देखा तो तुम्हें नहीं भाई, लेकिन अल्लाह ने उसी में खैर कसीर रखा कि नहीं? ये है सबसे प्लस पॉइंट कि अच्छाई भी ढूंढो, जिसको आप बोलते हैं ना, शर में भी खैर होता है। जी, आयत नंबर 20 में और खूबसूरत है ये। इस आयत करीमा से फुक़हाए इस्लाम ने बड़ी, किंतारन का एक लफ्ज है इसमें, किंतारन बोलते हैं कसीर को, यानी महर, समझ रहे? तो जितनी भी महर उनकी मुतय्यन है पूरा दे देना, एक जरा भी नहीं खाना उसमें से, जबरदस्ती नहीं, खुशी खुशी दे तो सुभान अल्लाह। और फिर आयत नंबर 22 में बल्कि आयत नंबर 22, 23, 24 में बहुत ही अहम मसला है कि किन से शादी
حلال ہے, کن سے شادی حرام ہے. ماں سے شادی حرام ہے, بیٹی سے شادی حرام ہے, بہن سے شادی حرام ہے, پھوپھی سے شادی حرام ہے, خالہ سے شادی حرام ہے, بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی سے شادی حرام ہے, بہن کی بیٹی سے شادی حرام ہے یعنی بھانجی ہے نہیں, اور جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان ماں سے شادی حرام ہے, اور وہ بہن جو دودھ پیتی بہن ہے, رضائی بہن, وہ بھی ان سے بھی شادی حرام ہے, اور ساس سے شادی حرام ہے وغیرہ. یہ تفصیلات ہیں شادی. اور جو شوہر والی ہیں ان سے بھی شادی حرام ہے یعنی شادی شدہ. اس میں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, انگلش میں ایک لفظ میرٹل افیئر ایسا کچھ آتا ہے نا, شادی شدہ لڑکی جو افیئر کرتی ہے. ابھی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنا ہے, قانون بنا ہے, ذرا غور کیجئے گا. شادی کا مقصد ہی ہوتا ہے فزیکلی ریلیشن. اب اگر شادی کے بعد بھی وہ کسی اور سے مطلب فزیکلی رشتہ بناتی ہے تو پھر شادی کا مطلب ہی ختم ہو گیا. نان سینس ایک دم باتیں ہو گئی, گویا قانون بالکل غیر فطری ہے جو انڈیا کا قانون ہے, غیر فطری, بالکل غیر فطری ہے ایک دم. کیونکہ شادی کی جو پوترتا تھی, شادی کی جو ثقافت تھی, شادی کا جو اسٹرانگنیس تھا وہ ختم ہو گیا. کیونکہ شادی کا مقصد ہی یہی ہے کہ فزیکلی رشتہ, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں شادی سے ریلیٹڈ, بلکہ برائیوں سے بچنے ہی کے لیے شادی کیے. تو محسنات من النساء سے میرٹل افیئر ہے نا, ہاں, تو اس کا بھی پتا چلا کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. شادی شدہ لڑکیاں کسی سے بھی اپنا فزیکلی رشتہ نہیں بنا سکتی شوہر کے علاوہ. ایسے تو کوئی بھی عورت نہیں بنا سکتی, لیکن خاص طور سے شادی شدہ بھی, اگرچہ شوہر جب تک مطلب تمہاری خواہش پوری نہیں بھی کر رہا لیکن تم نکاح میں ہو تو نہیں بنا سکتے. یہ بہت اہم بات تھی. اچھا, اسی آیت میں ایک لفظ ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, آیت نمبر 24 میں, کہ حرام کتنی چیزیں ہیں اللہ نے بیان کر کے کہا, حلال کی تفصیلات نہیں بتائی, فرمایا اس کے ما سوا حلال ہے. تو فقہاء اسلام نے فرمایا کہ جتنی چیزیں حرام ہیں سب کو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بتا دیا, لیکن حلال کے لیے ایک قاعدہ دیا کہ اس کے علاوہ حلال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام کیا کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے, ہاں, لیکن حلال کیا کیا ہے ان حرام کے علاوہ سب حلال ہے. ایک عقیدہ دیا. اسی لیے اشیاء میں اصل ہے حلال ہونا, مباح ہونا ہے. کیوں؟ حرام کی ڈیٹیل اور تفصیل اللہ نے بتا دی ہے. واہ واہ واہ. آیت نمبر 25 میں جو بہت خوبصورت ہے, ایک لفظ آ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ. آج کے حساب سے اس کا ترجمہ اگر کروں تو کہا جا رہا ہے کہ نکاح کرو پاکیزہ عورت سے, اور عورت کو بھی کہا پاکیزہ مرد, یعنی نکاح کو زور دیا ہے اسلام نے. ٹھیک ہے, نکاح کو زور دیا ہے. اور بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ایک لفظ ہے, اس سے بھی ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ اپنے مطلب یہ کہ اولیاء سے جو آپ کے ذمہ دار ہیں ان کی اجازت سے, جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ بھاگ کر آپ شادی نہیں کرنا, بھاگ کر شادی نہیں کرنا. کوٹ کیا, کسی کو بھی مولوی کو یا کسی کو بھی لے کر کہیں بھی بھاگ کر شادی نہیں کرنا. ایک لفظ کہوں, اگر کر لیے بالغ ہو نکاح تو ہو جاتا لیکن فیضان نکاح نہیں ہوتا. ماں باپ اگر روئے, اور یقیناً روئیں گے, اگر کا تصور ہی نہیں ہے, ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگنے والی اور بھاگنے والا وہ بھاگتا ہی رہے گا یہاں سے لے کے جہنم تک. کبھی فزیکلی خوشی تو دونوں کو ظاہری طور پر مل سکتی ہے لیکن حقیقی روحانی خوشی اسے نہیں مل سکتی. یہ زور دیا اسلام نے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب تک شادی نہیں ہوئی ہے کسی بھی غیر محرم سے دوستی آشنائی نہیں کر سکتے. آج کے حساب سے بوائے فرینڈ نہیں بنا سکتے. اس کو سمجھیے اس جملے کو.
बॉय फ्रेंड नहीं बना सकते, क्योंकि सूरह निसा है इसलिए जोर औरतों पर दे रहा हूं। बॉय फ्रेंड नहीं बना, बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। तो बॉयफ्रेंड ही नहीं बना सकते तो आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, रोज डे फो कोई डे नहीं हम आ सकता। हाँ, तो बॉय BF का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। और ये भी ऐसा ना हो कि सूरतुर रिजाल नहीं है तो आप मर्द कहें तो GF का तसव्वुर तो होगा। नहीं नहीं नहीं, जब बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते तो गर्लफ्रेंड कहां से होगी? समझ? हाँ। और एक और इसमें जुमला खूबसूरत कह रहा हूं, वो ये है कि लव का जो तसव्वुर है खासतौर से फिजिकली रिश्ते की बुनियाद पर, वो है शादी। शादी से पहले लड़कियां सिर्फ मां बाप से मोहब्बत करें, महरमों से मोहब्बत करें, गैर महरमों से लब का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, क्योंकि यही आगाज है फिजिकली रिश्ते का। अगर गैर महरम है तो फिजिकली रिश्ते का आगाज है गैर महरम से अगर लब हुआ तो। क्यों आप मोहब्बत करेंगे जिनसे शादी हलाल है? क्यों मोहब्बत करेंगे? क्यों कजन से आप मोहब्बत करेंगे? क्यों खलेरे भाई से मोहब्बत करेंगे? क्यों ममेरे भाई से? क्यों के चचेरे भाई से? क्यों फुफेरे भाई से आप मोहब्बत करेंगे? क्यों आप अपने भाई से क्यों नहीं करेंगे मोहब्बत? महरम को मोहब्बत करने का। हाँ, क्योंकि महरम से मोहब्बत करेंगे तो वाव नहीं सुनेंगी आप, महरम से मोहब्बत करेंगी तो सुभान अल्लाह सुनेंगी, माशा अल्लाह सुनेंगी। आपके कपड़े देखकर ये बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बाप अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा, लेकिन आपका कजन बोलेगा वाव क्या दिख रही हो। आप समझ रहे इस बात को? तो लव का तसव्वुर आफ्टर मैरिज है, बिफोर मैरिज नहीं। समझ में आया? ये दोनों के लिए है, मर्द औरत। मैं औरत पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि सूरतुन निसा है। ये बहुत अहम दर्स हो रहा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 26 देखिए। 26 में अल्लाह ताला असलाफ से जोड़ने का दर्स दे रहा है कि असलाफ के तरीके को अपनाए रखना, ये मेरा मंशा है। किसके तरीके को? असलाफ के तरीके, बुजुर्गों के। अब अल्लाह जब असलाफ कहे तो अब अल्लाह की निगाह में जाहिर है ये बल्लर तो होंगे नहीं, अंबिया होंगे, औलिया होंगे, अगवास होंगे, अकताब होंगे, जो उसके महबूब बंदे हैं। कुनु मा सादिकीन में भी वही तसव्वुर है। ठीक है, वाह। आयत नंबर 34 की थोड़ी वजाहत करूं। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, इसका तर्जमा जो है यहूदी फिक्र रखने वाले मौलवी थोड़ा दूसरी तरह करते हैं। वो ये है कि मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया गया। उर्दू में हाकिम का तर्जमा तो कर दिया आपने, लेकिन आज के हाकिम को देखते हुए टेली करते हैं कि ये देखिए हाकिम तो जुल्म करता है। हाकिम कैसा इस्लाम है? मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया गया, जबकि ये तर्जमानी के खिलाफ है। समझ के एतबार से बोल रहा हूं, जहां हाकिम हुआ अहले सुन्नत के लोगों ने किया है तो वो एक अलग तसव्वुर है। मैं इसका तर्जमा लफ्जी तौर पर कर रहा हूं कि मर्दों को यानी शौहरों को औरतों का रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। रिस्पेक्टेबल तर्जुमा है ये, अदब के दायरे का तर्जुमा, अट्रैक्टिव है एकदम। फर्ज कीजिए आप शौहर हैं, ठीक है, आप पर जिम्मेदारी है, या आप डंडा लेके मारने के लिए हैं खाली शौहर? आप पर जिम्मेदारी है कि घर की क्या जरूरत है पूरी कीजिए। निकाह के वक्त बोलते हैं ना अलावा नानो नफका के, क्या मतलब है? नानो नफका आप पर जिम्मेदारी है। औरतों के पास नहीं बोलते ये जुमला, औरतों के पास नहीं बोलते। मतलब ये हुआ मर्द जो रिस्पॉन्सिबल है। तो हाकिम का मतलब ये है कि जो आपके तहत है ना, वहां के जजमेंट को आप अदल के साथ निभाओ। ये सही फैसला करो, आप वन वे आप फैसला ना करो। अब गलत होते हुए देख रहे हो और मां का सपोर्ट कर रहे हो, या गलत होते हुए देख रहे हो बीवी का सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, सही फैसला करो। यह है हाकिम का मतलब। हाकिम बमाना फैसल, जज, और जज के लिए लाजिम है कि वो इंसाफ के साथ फैसला करे।
समझ में आया? तो शौहर को औरतों पर रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, औरतों का हाकिम बनाया गया, मतलब जिम्मेदार बनाया गया है। ये आज के एतबार से माना नहीं है कि जुल्म करने वाला बनाया गया, ऐसा नहीं है। नेक औरतों की तारीफ कर रहा अल्लाह ताला। नेक बीवियां वो होती हैं जो बाअदब होती हैं और शौहरों के गयाब में, यानी शौहर जब गायब हो तो उनकी अमानतों की वो हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह। आज तो बिल्कुल उल्टा है, सामने तो पूरे मोहब्बत के पहाड़ पेश करती हैं और अगर बाहर चले गए तो क्या क्या सुनने को मिलता और हजारों तलाक हो रहे हैं। अल्लाह फरमाता है नेक औरतों की शान ये है कि कानितातुन हाफिजात, बाअदब होती हैं, रिस्पेक्टेबल होती हैं, और हाफिजात लिल गैब, गैब में, शौहर के गयाब में क्या करती हैं वो? उनकी अमानतों की फिजिकली जो चीज है वो भी हिफाजत करती हैं और उनके माल अमानत जितनी भी है सबकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। 34 भी हमारी बहुत खूबसूरत। और देखिए आप, ए शौहरो, अगर तुम्हें बीवी की नाफरमानी का खौफ हो, यानी नाफरमान बीवी के लिए एक थ्योरी दे रहा अल्लाह ताला, अगर तुम्हें बीवी की नाफरमानी का खौफ हो तो 3 सोल्यूशन अल्लाह पाक बता रहा है। 3 सोल्यूशन फ्रॉम गॉड। ठीक है, सोल्यूशन ये है कि फाइजुहुन्ना, सबसे पहले वाजो नसीहत करो। होता क्या है कि अगर उन्हें, देखिएगा, अगर उन्हें मैं नहीं बनाती, अब आप पहले ही राउंड में कैसा नहीं बनाती तू, तो ये नहीं, नाफरमानी तो कर रही है वो, तो नाफरमान बीवी के लिए शौहर को सोल्यूशन दे रहा अल्लाह ताला। तौहीदी सोल्यूशन ये है कि मुस्कुराते हुए कहो, आप नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा, मैं, मेरे को तो आप बताइए, मेरे को तो चाय भी नहीं आती, ठीक है, भूखे सो जाते हैं। और देखिए, अरे बहुत कमजोर होती है भाई, वो हर तरह से कमजोर होती है वो, लेकिन बड़ी स्ट्रांग भी होती है। जरा मोहब्बत दीजिए आप। और अल्लाह जब कह रहा है तो अल्लाह के कलाम में तो तासीर ही तासीर है। फरमारा फाइजुहुन्ना, पहले नसीहत करो। नसीहत भी अगर ना माने, कुछ भी बोलो, नहीं बनाती, तो दूसरा सोल्यूशन देखिए, फाइजुहुन्ना फिल मदाजिअ, अलग सो जाओ, छोड़ दो, नहीं छोड़ दो उनको, अपनी ख्वाब नहीं, उनको ख्वाबगाहों में छोड़ दो। यहां पर एक नुक्ता देखिए, ऐसा नहीं कि भाग, नहीं, जो उनके जहां सोती है ना, उनको सोने दो, तुम चले जाओ। क्या खूबसूरती है यार, आप इसको समझिए, इस नुक्ते को। वह जरूर छोड़ दो, हुन्ना, उनको, फिल मजाजिअ, ख्वाबगाहों में। तो ख्वाबगाहों का मतलब जहां वो सोती है वहीं। हम अपन क्या होता, भगा दिए, दरवाजा लगा दिए, अब क्या करेगी वो? तो ये सोल्यूशन ऑफ तौहीद। दूसरा था कि उनको सोने दो, तुम मत देखो ना, अरे दरवाजे पर 10 मिनट बैठो ना, खुद देखती वो छुप करके कहां है। लेकिन अगर भगा दिए तो आप तो पहले ही से जल्लाद है, कहां से देखेंगे आप? लेकिन सोल्यूशन देखिए, उनको सोने दो, हाँ, तुम हट जाओ, नमाज पढ़ो, इबादत करो, दुआ करो, इजहार नाराजगी के तरीके हैं, करो ना। सोल्यूशन ऑफ तौहीद देखिए, ठीक है। और अगर दूसरा ऑप्शन भी कारगर ना हो, तब थोड़ी सी तंबीह करो। वज़रिबुहुन्ना का माना मारो का लफ्ज है, लफ्जी तर्जुमा जर्ब करो, लेकिन जर्ब माना यहां पर वो जदो कोब वाला नहीं है, चेहरा छोड़ करके कहीं पर भी आप। और यहां मुराद यही है कि दूसरे सोल्यूशन के बाद तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आए। हाँ, तो जर्ब से मुराद जाहिर है, जब अरबी में जर्ब कहा जाए तो अरबी में उसकी मुराद लेंगे, आज के हिसाब से नहीं लेंगे कि गोली मार दो, मार तो है, तो मिसवाक नहीं, मतलब चेहरा के अलावा, अरे यार हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ कर चलो किचन में, बनाओ बनाओ, मैं देखता हूं कैसा नहीं बनाते, शौहर को भूखा रखते क्या। कभी कभी जोर में भी मोहब्बत नजर आती है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये है असल मुराद। हाँ, फिर अगर वो इताअत कर लें तो फिर उनको तलाक नहीं देना। ये देखिए, आज जालिमों ने ट्रिपल तलाक को इस तरह से कह दिया, हालांकि ट्रिपल
सोल्यूशन फ्रॉम रियल गॉड, ट्रिपल सोल्यूशन था, लेकिन इस सोल्यूशन को हाईलाइट करने के बजाय ट्रिपल तलाक को हाईलाइट किया। 3 सोल्यूशन पेश किया है। इस सोल्यूशन के बाद बताइए कोई सूरत रह जाती है? मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्लाद या इतनी ऐसी औरत होगी। खैर, तो क्या अल्लाह फिर उनको तलाक वगैरह नहीं देना, कहीं पर भी तलाक का कोई जहन दिया अल्लाह ने? नहीं दिया। अच्छा, अब सुनिए, आप जो है 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, बाप रे बाप ऐसे रहा तो कैसा, समझ रहे ना? तो अब अल्लाह ताला कह रहा है, अब अगर शौहरों, पहले देखिए मामला फहमी, आपस में अंडरस्टैंडिंग आपस में करो पहले, फौरन बाहर नहीं। आज की बेटियां बीवियां क्या होती, पट से मां बाप को फोन कर देती, या शौहर भी हैं दोस्तों को फोन कर देते, अरे क्या हो गया जी, मैं परेशान हो गया इनसे, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, क्या करूं कैसे। ये सोल्यूशन नहीं है तौहीद। और जब आप कुरान नहीं मानोगे, इस्लाम नहीं मानोगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो करोगे, फॉर एग्जाम्पल दुनिया का कानून ये है, इंडिया का कानून ये है कि लेफ्ट चलना है आपको, अगर आप राइट चलोगे और एक्सटेंड हो गया तो आप ही को पकड़ेगा कानून कि भाई आप इधर क्यों चल रहे थे, सही है कि नहीं, इधर क्यों चल रहे थे आप। तो कानून को फॉलो किया जाता। तुम सोल्यूशन ऑफ तौहीद तो फॉलो करो, अगर वो वाकई आपके प्रॉब्लम को हल नहीं करता तो बोल सकते, और यकीन नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर भी दोनों के दरमियान निबाह मुमकिन ना हो, दोनों के दरमियान मुमकिन ना हो, तो अब सोल्यूशन तीसरा दे रहा है आयत नंबर 35 में, क्या कि अब जो है बड़ों को बिठाओ। देखिएगा क्या बात है यार, तलाक की वो बात भी नहीं आ रही यहां पे, कितना बचाने की कोशिश कर रहा है इस्लाम। महसूस कर रहे हैं आप जुमले को? इस्लाम रिश्ते के वकार को कितना बचाने की कोशिश कर रहा है। पहले अंडरस्टैंडिंग, पहले मामला फहमी, फिर जब सर के ऊपर चला जाए पानी तो उसके बाद उनके बड़े अकल वाले, वो दादा नहीं, गुंडे नहीं, जो मामला को सॉल्यूशन के आईने में पेश कर सकते हो, प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हो उनको नहीं। मैं आपको इसलिए फोन किया कि आप समझदार हैं, ऐसा। अब अगर फर्ज कीजिए कि आपकी सास बहुत ही जल्लाद है, अब उनको फोन नहीं करना, अब देखें कि उनके खानदान में कौन सबसे ज्यादा सही फैसल है, सही समझदार है, रिश्ते के वकार को बचाता है, समझदार है। तो लड़की वालों की तरफ से एक जज को बुलाओ और लड़के वाले की तरफ से एक जज को, यानी बड़ों को बिठाओ। आज तो पूरी औरतों ने एकदम बिल्कुल ले लिया खुलासे कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये दोनों इस्लाह का इरादा रखें। अब नुक्ता दे रहा हूं, ये दोनों चूंकि अच्छे हैं, दिमाग वाले हैं, दोनों को समझाएंगे, पुरअसर अल्फाज रहते हैं इनके पास, इनका दोनों बीवी और शौहर दोनों सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो सुनो, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान तौफीक नाजिल कर देगा। लिखिए, अंडरस्टैंडिंग में आ जाने के बाद अल्लाह तौफीक नाजिल करेगा। मतलब ये कि ऐसे सॉल्यूशन को अपनाओगे ना तो मेरा करम नाजिल होगा। ये देखो, पहले तो एकदम रिश्ते के बचाने के लिए आपको हैंड ओवर किया, ये करो, ये करो, क्या बात है। असबाब का खालिक, पहले असबाब इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। अब अगर वो आपके लिए नेगेटिव साबित हुआ तो मैं हूं ना, क्या बात है, मैं खालिक हूं ना तेरे साथ, सुभान अल्लाह। खैर, तो देखा आपने आयत नंबर 35 में। आयत नंबर 36 में अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी इबादत करो, और इसमें मैं लफ्ज़ शैअन को, उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराऊं। मैं इससे यह ज़हन देने जा रहा हूं कि गैर अहले सुन्नत वल जमात के लोग यहां पर शैअन की जगह में नबियन और वलियन को ला देते हैं कि नबी को शरीक नहीं कर सकते और वली को शरीक नहीं कर सकते, जबकि यहां पर है शैअन, शय को शरीक ना करो। और नबी चीज नहीं है, नबी रिस्पेक्टेड है, नबी और वली रिस्पेक्टेड है, महबूब हैं, और महबूब रब ने उनको बनाया है। पार्टनर होते तो महबूबे खुदा नहीं होते वो,
पाट का मतलब है तो महबूब ही महबूब होते हैं ना, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, इसलिए यहां पर शैअन ने नबियन वलियन ये सबको दूर कर दिया। मुराद ये है कि पार्टनर न बनाओ, जैसे बुत पार्टनर बनाते हैं, यानी इबादत में शरीक। हाँ, खैर। इसी तरह रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, पड़ोसों के साथ, सबके साथ हुस्न सुलूक का इस्लाम ने हुक्म दिया। क्या बात है। आयत नंबर 41 जो बहुत अहम आयत करीमा है, और इस पर आप अश्कबार हो कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह आयत करीमा की तिलावत जब सुने तो आप अश्कबार हो गए और रो पड़े। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ही हैं, या रसूल अल्लाह क्या मैंने तिलावत में कुछ कमी की है? कहा नहीं, पढ़ो जो आयत करीमा तुमने पढ़ी बार बार। फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, यानी मुराद ये है कि क्या शान होगी मेरे हबीब आपकी, क्या हाल होगा आपका, कैसे उस वक्त होंगे आप, कैसे दिख रहे होंगे आप, कैफियत मुस्तफा, जब हम हर उम्मत से एक गवाह, एक विटनेस को लाएंगे, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कि जितनी भी उम्मत है, सारी उम्मत से कहेंगे तुम्हारे पास मेरी तौहीद आई, तो सारे नबियों के जो मुनकिरीन होंगे वो कह देंगे मा जाना मिन बशीर वला नजीर, हमारे पास कोई भी डराने वाला या बशारत देने वाला नहीं आया। मुनकिर वहां भी कह देंगे, सही है। तो सब उम्मत में से हम क्या लाएंगे? विटनेस लाएंगे। लेकिन मेरे हबीब फिर वजीना भी काला हाउलाई शहीदा, मगर सब की गवाही के बाद उन सब पर हम आपको गवाह पेश करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अश्कबार होकर के इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मजबूर हूं, मैं गवाही नहीं दे सकता, मैं तो सबके सब हालात जानता हूं, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि अपनी गुनहगार उम्मत के गुनाहों की गवाही कैसे दूं। मुझे उम्मत के गुनाहों सामने नजर आ रहे हैं, और अल्लाह ने जब कहा है तो मैं एतराज भी नहीं कर सकता, मगर मैं अपनी गुनहगार उम्मत की गवाही कैसे दूं। बहरहाल अल्लाह पाक ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 118 के तहत बशारत तौहीद मिली खुदा की तरफ से नबी को कि या ए मेरे हबीब इन्ना सनुर्जी का फी उम्मती का, आप अपनी गुनहगार उम्मत के लिए परेशान न हो, हम आपको आपकी उम्मत के सिलसिले में राजी करेंगे और आपको जर्रा बराबर भी दुख नहीं देंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल पहले हम पैदा नहीं हुए थे और हमारे लिए कोशा थे कि बख्शे जाएं। हम हैं कि सुबह शाम गुनाहों में मुलव्विस हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे गुनाह ही की वजह से अपने आंखों से आंसू गिराए हैं। या अल्लाह उस आंसू में हमें शामिल न करना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे राजी करना, हमसे खुश करना। आयत नंबर 41 का ये दर्स था। आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो, और तुम में से जो अम्र वाले हैं यानी उलमाए किराम, उलमाए हक, मुज्तहिदीन इस्लाम, उनका भी हुक्म मानो। यहाँ पर मुराद ये है कि अगर अल्लाह की बात तुम्हें डायरेक्टली समझ में ना आए तो दर रसूल पे हाजिर हो, और अगर रसूल की हदीस समझ में ना आए तो सहाबा और उलमाए उम्मत के पास रुजू करो। तो उलमाए उम्मत से रुजू करना भी ये अल्लाह ही से रुजू करना है। इससे तकलीद का कॉन्सेप्ट मिलता है आयत नंबर 59 से, ठीक है। अब आयत नंबर वो मशहूर आयत करीमा जो 64 है, मगर उससे पहले मैं 61 आयत करीमा की एक वजाहत करना चाहता हूं। वो ये है कि मुनाफिकीन उसको कहते हैं जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हो। मुनाफिकीन उसको कहते हैं जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हो, यानी मुसलमान की कैटेगरी में हो,
कलमा गो हो, कलमा मुंह से पढ़ते हो लेकिन दिल में बुग़्ज़ नबी हो, सिर्फ नबी का बुग़्ज़ हो, खुदा का नहीं। ये भी ध्यान रखें, खुदा का होता तो नमाज क्यों पढ़ते? तो तौहीद के दुश्मन को मुनाफिक नहीं बोलते हैं, रिसालत के दुश्मन को मुनाफिक बोलते हैं, ठीक है। कलमा गो होते हैं, एक शान उसका वस्फ बयान हो रहा है कि जब इन मुनाफिकों से कहा जाए कि आओ अल्लाह की नाजिल करदा यानी कुरान की तरफ आओ, तो वो दौड़ते हुए आते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब कहा जाए रसूल की तरफ, तो राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, मेरे हबीब मुनाफिकीन आपकी तरफ वो नहीं आएंगे। मालूम हुआ नबी की ताजीम और नबी के रिस्पेक्ट से भागने वाले ही गुस्ताख हैं। आप समझ में आई बात? हाँ, इसीलिए इब्लीस का भी तसव्वुर यही है कि अल्लाह की इबादत में सुबह शाम मसरूफ रहा, सुबह शाम, लेकिन जब ताजीम नबी की बात आई तो बिफर गया। तो ताजीम नबी से बिफरना ही शैतानी वस्त्र है। आयत नंबर 64 जो मशहूर आयत करीमा है कि लोगों अगर जुल्म कर लो अपने आप पर तो दरे रसूल पे हाजिर हो और हाजिर होकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और रसूल के हवाले से भी अकीदा रखो कि वो तुम्हारे लिए शफाअत मांग रहे हैं, तो तुम्हारी तौबा अल्लाह कबूल कर लेगा और रहम भी फरमाएगा। इससे अकीदा वसीला मिलता है और बारगाह रिसालत में हाजिर होने का तसव्वुर मिलता है, आस्ताने मुस्तफ़ा से लव लगाने का तसव्वुर मिलता है और बुजुर्गों के आस्थानों पर जाने का तौहीदी कॉन्सेप्ट मिलता है। और सबसे बड़ी चीज कि तौबा की कबूलियत का बरकत है, जिसको आप बोलें कि अंबिया और औलिया के आस्थाने शिर्क के अड्डे नहीं बल्कि तौहीद के मराकिज हैं, वहां दुआ कबूल होती है। वरना अल्लाह पाक तो हमेशा हर पहलू, हर जिहत, हर जर्रे में उसका नूर है, तो तौबा कबूल करने के लिए दरे मुस्तफ़ा पे हाजिरी की शर्त क्यों लगाई? ज़हन देना चाहता है कि वहां जाओगे तो तौबा की कबूलियत गारंटेड है। आयत नंबर 65 में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिमे मुतलक होने का ऐलान किया है। कसम है मेरे हबीब आपके रब की कि वो मोमिन होंगे ही नहीं जब तक कि वो आपको जज ना मान लें उन तमाम चीजों में जो वो इख्तिलाफ करते हैं, और आप जिस चीज का फैसला कर दें उस फैसले में जर्रा बराबर भी चूचरा न करें, बसरो चश्म उसे कबूल करें, तो वो मोमिन होंगे। मुराद ये हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम और मुख्तार और जज मानने वाला ही मोमिन है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर माने वो खुदा की निगाह में मोमिन नहीं है। 65 आयत नंबर 69 में जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा उनका हश्र नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ, सालिहीन के साथ। सवाल सिर्फ इतना है कि हम अल्लाह रसूल की जब बात मान लें तो हमें पर्सनल जन्नत क्यों नहीं? पर्सनल जन्नत क्यों नहीं? इनके साथ क्यों ज़हन दिया है? वाह, तुमने दुनिया में भी इनकी वजह से ईमान को बचाए रखा और इनके साथ रहे ना, तो साथी जब अच्छा हो ना तो उसको साथ उसकी जो संगत है उसका साथ खराब नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से दोस्ती करते हो, अगर दोस्त अच्छे हैं तो वो दोस्त कहीं भी मिल जाए मुस्कुराओगे कि नहीं? तो अगर नबी से आप दुनिया में साथ हैं और नबी अच्छे हैं तो अल्लाह पाक इस साथी को वहां भी बना देगा। ये है असल तसव्वुर। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि दुनिया में अगर अच्छे साथी हैं तो आखिरत में भी तुम्हें, इसीलिए कुरान ने कहा हसुन उलाइका रफीका, क्या बेहतरीन रफीक हैं। वाह वाह। 69 हाँ 69। और यहां पर अल्लाह रसूल की इताअत ठीक है, मगर उसकी तफसीर में आयत नंबर 80 से कर रहा हूं। मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का कहा मान लिया बेशक उसने खुदा का कहा मान लिया। तो उम्मत के लिए रसूल ही बेस ऑफ तौहीद हैं, क्योंकि रसूल ही बताते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह का हुक्म भी रसूल ही के जरिए मान रहे हैं, तो रसूल ही बेस ऑफ तौहीद है। सुभान अल्लाह। अच्छी लंबी वीडियो हो गई है।
مگر چونکہ عورتوں کے حوالے سے ہے اس لیے میں کر رہا ہوں لمبا اس کو. ایک مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے آیت نمبر 94 میں کہ کوئی آپ کو سلام کرے اور ان کے بارے میں آپ کو تحقیق نہ ہو تو آپ جواب سے گریز کرتے ہیں یا پھر ظاہر کو دیکھ کر کے، جیسے آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے نوجوان کے اندر کہ نہیں وہ بہاوی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اس کا جواب نہیں دینا وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ رہے اس کو؟ میں کہنے سے یہ جا رہا ہوں کہ جب تک کسی کے اندر پوری طرح تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ ان کے عقائد باطل ہیں، کفریہ ہیں، ان سے سلام کلام بند نہیں کر سکتے جب تک تحقیق نہ ہو جائے. یہ تصور دیا اسلام نے. ایک جلیل القدر عاشق رسول صحابی کا واقعہ سنیے آیت نمبر 100 میں، پھر اس کے بعد مکمل کروں گا. 100 میں حضرت جندہ بن زمیرہ لیسی ہے. آیت نمبر 100 جب آیت نازل ہوئی تو حضرت جندہ جیم نون JUNDA جندہ بن زمیرہ لیسی رضی اللہ عنہ ہے. انہوں نے جب یہ آیت کریمہ کو سنی، یہ بہت بوڑھے تھے، اور آیت کیا ہے؟ میں یہاجر فی سبیل اللہ، جن کے پاس خوب دولت ہو پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، یعنی ہجرت کرنے کی پوری پاسبلٹی موجود ہو پھر بھی وہ ہجرت نہ کرے، تو ان کے سمجھیے رد میں نازل ہوئی ہے بظاہر. تو یہ کہنے لگے، جب انہوں نے سنا نا تو کہنے لگے میں تو مستثنا لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ ہجرت کر سکتا ہوں. یہ آیت جب سنی، خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو. بوڑھے تھے حالانکہ، چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے. سنیے ایک عاشق رسول کو قرآن پر کیسا عمل کرنے کا جذبہ تھا. لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا. جذبہ آپ پہلے دیکھیے، بڑے دولت مند تھے، لیکن آیت اتری کہ جو نہیں کرے گا، وعید کے انداز میں آیت اتری. آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، دایاں ہاتھ یا ایسے، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ دایاں بولے تو سیدھا رائٹ، ٹھیک ہے، اس میں ایسا دکھ رہا ہے، تو رائٹ ہینڈ لیفٹ پر رکھا اور کہا یا رب یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ تیرا ہے اور تیرے رسول کا ہے. میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت لی. یہ خبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا. ایسا، اور مشرک ہنسنے لگے، یعنی صحابہ رش کرنے لگے اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ تو ملا ہی نہیں. اب سنیے، فرماتے ہیں من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، جو اللہ رسول کے لیے نکلے گا نا، درمیان میں موت بھی آ گئی تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ کے یہاں واقع ہے. یہ آیت اترنے کے بعد رش کے صحابہ بن گئے، رش کے صحابہ بن گئے الحمدللہ. آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. انلیمیٹڈ علم غیب، کیونکہ نہ جاننے کی لمٹ ہے ہی نہیں، نہ جاننے کی لمٹ ہے ہی نہیں. جاننے کی لمٹ ہے، آپ جانتے کیا کیا ہے اس کی لمٹ ہے، اب نہیں جانتے کیا کیا ہے اس کی لمٹ نہیں. اور اللہ پاک نے وہی فرمایا جو نہیں جانتے وہ میں نے جنایا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، علم غیب کو فضل الہی قرار دیا اللہ پاک نے. آیت نمبر 119 میں اس میں اشارہ کر دے رہا ہوں خلاصہ، اس میں نسبندی کو حرام کرنے کا تصور ہے. اللہ نے جس چیز کو جہاں جیسے پیدا کیا ہے اس میں ایڈیٹنگ حرام ہے، اسی لیے مردوں کو کان چھدانا حرام ہے اور عورتوں کو نسبندی کرانا حرام ہے، کیونکہ نس اللہ نے رکھی ہے اور آپ کاٹ رہے ہیں اس کو.
नस अल्लाह ने रखी है। देखिए, हाँ, माद्दे तौलीद अल्लाह ने रखी है, अल्लाह ने उसे पैदा किया है, लिहाजा नसबंदी ये हराम इसीलिए है। समझ रहे हैं ना आप? और ये शैतानी काम है। मर्द का कान छिदाना भी शैतानी काम है और औरतों का नसबंदी कराना भी शैतानी काम है। कौल शैतान का लफ्ज है। समझ में आई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 133 में अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा नहीं। आयत नंबर 128 में सुलह कराना बहुत बड़ी इबादत है। दो के दरमियान लड़ाई हो रही हो तो सुलह कराना बहुत बड़ी है। सुलह को खैर फरमाया। 138, हाँ, 129, सुलह कराना बहुत बड़ी इबादत है। आयत नंबर 134 में कि दुनिया तलब ना करो, आखिरत तलब करो, मैं तुम्हें दुनिया भी दे दूंगा। और आयत नंबर 136 में अल्लाह ने ईमान के तहफ्फुज का दर्स दिया है, ईमान वालों ईमान की हिफाजत करो। ठीक है। और आयत नंबर 140 में अल्लाह पाक ने बुरे लोगों की सोहबत से बचने का हुक्म दिया है। यानी अगर कोई गलत कुरान का तर्जमा दे रहे हो, गलत हदीस बयान कर रहे हो, गलत शरीयत का एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अल्लाह पाक कहता है ला तक़ुदू माहुम, उनके पास न बैठो, उनकी महफिल में न बैठो। हम लोग जो रोकते हैं इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम हमारी वो एक्सप्लेनर जो है हमारी विरासत को छीन लिए है। नहीं, आप बैठोगे तो जो वो बोलेंगे वही सीखोगे। कादियानी के पास बैठोगे, कादियानी में कादियानियत मिलेगी, क्योंकि सबके सामने कुरान ही रहता है। लेकिन जरूरी है कि जिससे आप इल्म सीख रहे हो पहले आप उनको देख लो, गौर फिक्र कर लो, वरना अल्लाह फरमाता इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तुम्हारा भी अंजाम उन्हीं की तरह होगा। अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों की सोहबत से महफूज फरमाए। आयत नंबर 135 में अल्लाह पाक फरमाता है 145 में कि मुनाफिकों का अंजाम जहन्नम के सबसे निचले तबके में, काफिरों से भी ये बदतर है, काफिरों से भी ये बदतर है, क्योंकि काफिर तो गुस्ताखे रसूल नहीं है ना, काफिर तो अपने महबूद की पूजा में है, ये तो गुस्ताखी कर रहे हैं, इसलिए ऐसे तबके में है कि हर तबका इससे जहन्नम का पनाह मांगता है। आयत नंबर 148 में अल्लाह पाक ने गाली गलोच को हराम फरमाया है, गाली गलोच को हराम फरमाया है। आयत नंबर 158 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का वाकया है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया है, लिहाजा क्रिश्चियनों का अकीदा गलत है। आखिरी बात कह रहा हूं और इस पर मुकम्मल 147 पारा नंबर 5 की आखिरी समझिए आयत करीमा। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, यानी इसका मफहूम यह है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर अल्लाह का क्या होगा। मैं तमाम औरतों, ये सूरह निसा है ना बिलखुसूस, तो हमारी बहनें बेटियां और जितनी भी औरतें हैं बिलखुसूस उससे खिताब करते हुए कह रहा हूं, और बितबा नई जनरेशन बच्चों से भी खिताब करते हुए कह रहा हूं कि समंदर के झाग के बराबर भी तुम गुनाह कर लिए हो तो रुजू कर लो, तौबा कर लो, जो रियलिटी ऑफ कुरान पेश किया गया है उसकी तरफ आ जाओ। क्यों? अल्लाह का कोई भला होने वाला नहीं तुम्हें अजाब देकर। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब देकर वो करेगा क्या? हाँ, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम मोमिन बन जाओ, शुक्रगुजार बंदे बन जाओ तो वो खुश होगा। अजाब देकर वो खुश नहीं होगा और उसका कोई भला भी नहीं है, तो करते ही क्यों ऐसा काम कि अल्लाह ताला जो अजाब दे रहा है उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम अच्छा काम करोगे तो वो खुश होकर और तुम्हें दर्जे अता करे। इस आयत से ज़हन मिला कि कोई हमें ऐसा काम नहीं करना है जिनसे कि अल्लाह वो हमें दे जिसमें अल्लाह का कोई भला ही नहीं, भला का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अल्लाह अजाब देने वाला है, बस अल्लाह ने एक ज़हन दे दिया है। तुम जो जैसे हाकिम लोग आज जितने भी है ना,
सजा देते हैं तो दिल तो खुश होता है ना, बाप बेटे को मारता दिल खुश होता, कुछ ना कुछ पनिशमेंट करते हैं तो पनिश करने वाले का दिल खुश होता, नफ्स खुश होता। लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं खुश नहीं होता हूं अजाब दे करके, इसलिए तुम पर लाजिम है कि ईमान को सलामत रखो, अमल सालेह करो, शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, यू टर्न करके देखो। मैंने तुम्हें 400 की उम्र नहीं दी है, उम्मती मोहम्मदिया हो, 60 से 70 90 100 बरस के अंदर की उम्र दी है, मगर एक एक सेकंड कीमती दी है। 400 वाले उम्र वाले पर तुम बेहतर हो, तो तुम्हारा हर पहलू बेहतर होना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी खुलासे कुरान को बिलखुसूस औरतों के हक में कबूल फरमाए और हमारी बहनों को इस पॉडकास्ट से और इस खुलासे कुरान से ज्यादा समझ की तौफीक नसीब फरमाए।